I could have. Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2025. So let's move on to the questions. Question number 1 is, in the following question a sentence or a phrase is given which can be substituted by one word. Choose the most appropriate word explaining the sentence or the phrase from the given options. A person who cares about others and help others without any benefit is, क्या होता है वो, एमेच्योर तो नहीं होगा क्योंकि एमेच्योर कौन है जो कि मैच्योर नहीं है. एपोस्टेट हु हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, जिसने कि वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया, ठीक है ना, साधु बन गया, बैरागी बन गया. इसका होगा अल्टूरिस्ट. सी इज द आंसर. एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या होता है, हु इज नॉट श्योर. नॉट श्योर है कि गॉड होता है या नहीं होता. ना तो वो एथिस्ट है ना ही वो रिलीजियस है. और क्या बोल सकते हैं उसको, स्केप्टिक. ठीक है, सी इसमें आंसर है. एक्सेस 2, fill in the blank with the most appropriate word from the given option. There are several ways of dash the price at which product can be marketed. Judging, evaluating, determining, estimating. Determining, प्राइस क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. सी इज द आंसर. एक्सेस 3, इनहेलिंग द स्मोक ऑफ बर्निंग. अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दो दिए हुए हैं, डैश कुड डैश यू क्विकली. अब ये TYRE क्या होता है, टायर, पहिया, है ना. तो यहाँ पर क्या आएगा, बर्निंग टायर, उसकी काला धुआं निकलता है ना उसमें से. अगर आपने इनहेल कर लिया तो क्या होगा, यू विल गेट टायर्ड, सिक हो जाएंगे, है ना. TIRE, तो सी इसमें आंसर रहेगा. एक्सरसाइज 4, in the following question a sentence or a phrase is given which can be substituted by one word. Choose the most appropriate word explaining the sentence or the phrases from the given options. The exact copy of handwriting or printing is known as. Manuscript क्या है, the first script. Facsimile यही होता है, B is the answer. Encyclopedia क्या होता है, इस बुक या फिर कलेक्शन ऑफ नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन. ठीक है. सुवेनियर, थिंग विच मेड यू रिमेंबर समथिंग, है ना. आप कहीं भी घूमने जाते तो वहाँ से कुछ लेके आते ना यादगार के रूप में, कि भाई हम वहाँ पर घूमने गए थे, मैंने वहाँ पर ये लिया था, तो क्या बोलते हैं उसको, सुवेनियर. समथिंग दैट रिमाइंड्स यू. एक्सरसाइज 5, in the following question or sentence or a phrase is given which can be substituted by one word. The focus of compulsory enlistment for a military service is called, क्या होता है, रिक्रूटमेंट, conscription, पैंथिज्म या फिर साइनक्योर. इट इज conscription. बी इज द आंसर. रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये प्रोसेस है सीकिंग, फाइंडिंग एंड हायरिंग, है ना. मिलिट्री के लिए क्या करते हैं, conscription. ठीक है. पैंथिज्म क्या होता है, बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट इन ऑल नेचुरल थिंग्स. ये बिलीफ है एक टाइप का, बिलीव दैट गॉड इज एवरीवेयर. साइनक्योर, साइनक्योर क्या होता है, आराम की नौकरी, मतलब पैसे ज़्यादा और काम कम. लेस वर्क मोर मनी, दैट इज साइनक्योर. एक्सरसाइज 6, अगेन वही सब्स्टिट्यूटेड बाय वन वर्ड. ए शॉर्ट स्टोरी विद मोरल स्पिरिचुअल लेसन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, फिक्शन, प्रॉस, पैराबल या फिर फेरीटेल. इट इज़ अ पैराबल. सी इज द आंसर. फिक्शन क्या होता है, इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है ना. प्रॉस क्या होता है, स्पोकन और रिटन लैंग्वेज दैट इज नॉट अ स्टोरी, जो कि स्टोरी नहीं है, नॉट ए स्टोरी. ऑलराइट. Exercise 7, select the most appropriate option to fill in the blank. You need not dash so much fuss about wearing a mask when you go out. Need not to generate so much या फिर do, cause, make. Make a fuss, make a fuss, ठीक है, ऐसे होता है ना. D is the answer, मतलब ज़्यादा नखरे करना. Exercise 8, fill in the blank with the most appropriate word given options. Hundreds of workers are dash a protest against decision of the management. Performing, staging, sitting, standing. They are staging a protest. B is the answer. Exercise 9, fill in the blank with the most appropriate word from the given options. The teacher gave many examples to dash the idea contained in the poem.
ब्रिंग अबाउट क्या होता है? कॉज समथिंग टू हैपन, समथिंग टू हैपन। ब्रिंग इन क्या होता है? मेक और अर्न, ठीक है। ब्रिंग फोर्थ, प्रोड्यूस और गिव राइज टू समथिंग। अब इसका आंसर क्या रहेगा? एग्जाम्पल टू, ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब बाहर निकालना, मोर एम्फेसाइज करना, मेक समथिंग मोर एविडेंट, bring out the idea. D is the answer. Next is 10. Choose the appropriate option to make the following sentence grammatically correct. Neither of the biscuits you gave me dash chocolated chips contains or contain या फिर contain is contain. Neither क्या है? एक indefinite pronoun है, ठीक है ना, indefinite pronoun है ये, तो क्या आना चाहिए इसके साथ फिर? तो contains, A is the answer. नेक्स्ट 11, इलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बोस्टिंग ठीक है, एविडेंस ठीक है। ओवरराइड, ओवरराइड में डबल आर आएगा तो सी इसमें गलत हो गया। एस्केटिक ये ठीक है। नेक्स्ट इज 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। रिजेवनेट क्या होता है? रिटेल, रिफ्रेश, रिसेट, रिटेक, रिफ्रेश, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 13, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। टर्मिनेशन सिनोनिम है इसका, तो कंडक्शन, कंक्लूजन या फिर कंसोलेशन, कन्विक्शन, कंक्लूजन हो जाएगा इसमें, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 14, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेट चूज द बेस्ट वन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड एपैथेटिक, डिस्ट्रेस, इम्पेशेंट, इंडिफरेंट, डिसगस्ट। क्या आएगा इसका? इंडिफरेंट, सी इज द आंसर। अलग सा है ना। नेक्स्ट 15, in the following question, out of the given alternative, choose the best one which expresses the meaning of the given word abjure. Patronize, disown, sanction, approve. Abjure क्या होता है? To renounce, छोड़ देना, तो disown, B is the answer. Patronize क्या होता है? शरण देना, ठीक है ना। Sanction पता ही है, penalty. Approve आपको पता ही है। Next is 16. Select the most appropriate synonym of the underlined word. It was due to treacherous leader that he decided to leave the party. ट्रेचरस मतलब ये कहाँ से वर्ड आया है? ट्रीजन से। ट्रीजन मतलब गद्दारी, गद्दार बोलते हैं ना, गद्दारी कर दी इसने, ठीक है, मतलब धोखा दे दिया। तो डिवोटेड क्या होगा? तो लॉयल है, तो डिसलॉयल, बी इसमें आंसर है। ट्रांजिएंट क्या होता है? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रेवनस क्या होता है? वेरी हंग्री। नेक्स्ट 17, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एक्सल्ड, एक्सल्ड क्या होता है? एक फीलिंग होती है, फील और शो, ट्रायम्फ, मतलब जीत का उत्सव बनाना। तो ऑपोजिट क्या होगा इसका? एनिमेट करना मतलब फुल ऑफ लाइफ, इंजॉयमेंट, है ना, एक्साइटमेंट, लाइवली। रिजॉयस भी वही है। कोर्स क्या होता है? रफ, तो लेमेंट इसमें आंसर रहेगा, ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 18, चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट ऑफ पेंसिव। पेंसिव क्या होता है? थॉटफुल, सोच विचार करके किया गया कार्य, है ना। हैजार्ड पता ही है आपको, क्या होता है हैजार्ड? डेंजर, खतरा। प्लीजेंट अच्छा, है ना। थॉटलेस जो कि ऑपोजिट है थॉटफुल का, सी इज द आंसर। एक्सपीडाइट, जल्दी करना। नेक्स्ट 19, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट। एब्नॉक्शियस, एब्नॉक्शियस क्या होता है? जो कि अच्छा ना लगे, नॉट गुड। ग्लूमी, हॉस्टाइल, ऑब्सक्योर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? प्लीजेंट, अच्छा लगे जो, डी इज द आंसर। नेक्स्ट 20, फिर से ऑपोजिट। डेस्पिकेबल विच इज नॉट लव्ड, इसको प्यार नहीं करते, नॉट लव्ड। हेट्रेड, कंटेम्प्ट की फीलिंग, है ना। तो आउटब्रेक, एस्केप, रिस्पेक्टेबल, ब्रेकआउट, क्या होगा?
जिसकी कोई रिस्पेक्ट ना करता हो, डेस्पिकेबल, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 21, बटरफ्लाइज टू कैटरपिलर एज फ्रॉग इज टू। बटरफ्लाई कहाँ से आती है? कैटरपिलर से। फ्रॉग कहाँ से आता है? रेप्टाइल से, फिश, टैडपोल से, एम्फीबियन। टैडपोल छोटे छोटे जो पानी में होते हैं ना, फिर बढ़ते जाते हैं, फिर फ्रॉग बन जाते हैं, टैडपोल बोलते हैं। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 22, सीक्रेटली इज टू ओपनली, एज साइलेंटली इज टू नॉइसली, क्वाइटली नहीं और रूडली, इम्प्लॉयडली नो। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 23, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। एक्सप्रेशंस नो लॉन्गर इन करंट यूज, क्या होते हैं? आर्टिस्टिक या फिर आर्काइक? आर्काइक मतलब, आर्काइक वर्ड कहाँ से आया? आर्काइव से, है ना। पुरालेख मतलब पुरानी चीज, आर्काइव है ना, तो आर्काइक ही रहेगा। बी इज द आंसर। एंशंट क्या हो गया? पुराना। जो चीज यूज में नहीं है वो क्या है? आर्काइक। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 24, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। सबमिशन टू ऑल दैट हैपन इज इनएविटेबल, तो फेटलिज्म है, सुपरस्टिशन है, प्रैग्मेटिज्म है, पेसिमिज्म है? दिस इज फेटलिज्म। सबमिशन मतलब कोई कह रहा है, किसी ने अपनी बात रखी कि जो भी हो रहा है वो होना ही है, होनी तो होकर रहेगी। तो एक ये धारणा किसकी है? फेटलिज्म की धारणा है। ए इज द आंसर। क्या होता है फेटलिज्म? बिलीव दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड, लिखी हुई है सब चीजें, ठीक है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा फेटलिज्म का? प्रैग्मेटिज्म, जो कि प्रैक्टिकल वे पे ध्यान देते हैं। पेसिमिज्म क्या होता है? इट इज ऑपोजिट ऑफ ऑप्टिमिज्म। पेसिमिज्म क्या हो गया? मतलब निराशावादी, निराशावादी। नेक्स्ट 25, सिलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। व्हीट, राइस, ज्वार, ये क्या है? ये सीरियल्स हैं और ग्रेन है ना, सीरियल ग्रेन्स है। बीन क्या है? ये एक लेग्यूम है। लेग्यूम क्या होते हैं? इट हैज सीड इन लॉन्ग पोड्स, जैसे कि मटर होती है ना, ऐसे होती है मटर, उसके अंदर ये ऐसे लॉन्ग पोड्स में ऐसे मटर होती है अंदर, तो ऐसी बीन्स होती हैं। तो ओड हो गया। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 26, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें कितने वर्ड बन सकते हैं? फॉर्मेशन और राशन एटसेट्रा। फॉर्म तो है ही है, एक्शन नहीं बनेगा, कैसे? सी नहीं है इसमें, मोशन हो जाएगा, नोम हो जाएगा, नोशन हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे इससे, तो बी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 27, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। वाटर अंडर द ब्रिज, पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट एनी मोर, या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन इन वंस लाइफ, या फिर प्रोमिस दैट आर मेड टू वन सेल्फ एंड नेवर फुलफिल्ड, या फिर सीजनड क्रॉप विद हैवी डिमांड। ए इज द आंसर। पास्ट इवेंट है जो कि अब जरूरी नहीं है, लड़ाइयाँ थी खत्म हो गई, अब कोई ज़रूरी नहीं है भाई, अब लड़ाई चलती रहेगी। नेक्स्ट 28, द गिवन सेंटेंस इज फॉलोड बाय 4 phrases, चूज द वन विच कैन बी फिल्ड इन द ब्लैंक, मोस्ट मीनिंगफुल एंड करेक्ट। द मैनेजर ऑफ अ कंपनी ऑलवेज ट्राई टू डैश द एम्प्लॉयज हु अपोज्ड हिम। नीड द ब्रो, या फिर ब्रॉड बीट, या फिर कर्टेन लेक्चर, हैंग फायर। बोलते ब्रॉड बीट मतलब गुस्से से कुछ कहना, डरा धमका देना, ब्रॉड बीट बोलते हैं उसको। ओवरकम बाय हैवी टोन या वॉइस, टफ लैंग्वेज। बोलता ना बॉस, तुम्हें ज़्यादा पता है क्या मुझसे? तुम बॉस हो कंपनी के। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 29, the given word is followed by 4 phrases idioms. Choose the one which can be filled in the blank to make the sentence most meaningful and correct. He suspected that a manager has dash in the proposal. An axe to grind, या फिर oily tongue, alpha omega, ins and outs. An axe to grind मतलब कुछ ना कुछ घोटाला है। A is the answer. Next is 30. Consider the following sentences. After surgery, Raja hardly could walk. No. राजा कुड बेयरली वॉक, ये ठीक है। कुड हार्डली वॉक, ये भी ठीक है। बेयरली कुड वॉक ना, तो 1, 2 and 4 इसमें ठीक है। अब सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, तो 2 and 4 ये रहा। डी इज द आंसर।
Next 31. The given idiom is followed by 4 meanings. Choose the one with which best expresses the meaning of the given idiom. Take the bull by the horn. To sabotage a plan, या to meet the danger boldly, या फिर to remain careful, to lose control. To meet the danger boldly, खतरे का सामना बहादुरी से करना, है ना. बुल आ रहा है मतलब उसके टू टेक द बुल बाय हॉर्न, हॉर्न पकड़ के घुमा दिया, इस टाइप की बहादुरी. नेक्स्ट 32. रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट, या फिर द एरर विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. स्पॉट द एरर फ्रॉम दिस गिवन ऑप्शन. The doctor observed that the patient was gradually becoming weak. देखिए ग्रेजुअली है बिकमिंग है तो क्या आएगा यहाँ पर, वीकर आएगा. तो डी में प्रॉब्लम है तो डी में डी आंसर हो गया. नेक्स्ट 33. फिर से सेम क्वेश्चन है. While it is apparent that biotechnology offers significant benefit, adequate attention has not been focused to its vital area. देखिए फोकस टू दिस वाइटल मीन्स फोकस्ड ऑन दिस वाइटल एरिया आना चाहिए, फोकस्ड ऑन होता है ना. तो डी है इसमें भी डी आंसर रहेगा. नेक्स्ट 34. ओस्टोपोरोसिस बोन से रिलेट करती है डिजीज है ना. कंजंक्टिवाइटिस किससे करती है, लंग्स, आइज, ईयर, ब्लड. इट इज अबाउट द ईयर्स. आँख सूज जाती है ना, रेड हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 35. कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली यूजिंग द ऑप्शंस गिवन. हेस्टिंग्स डैश डेवलप्ड अ हॉलीडे रिजॉर्ट आफ्टर डैश. और ये पी क्यू कर दिया, डैश की जगह दो डैश की जगह जैसे ऑप्शन दिए थे टायर वाला, ऐसे ऑप्शन दे देते. पर नहीं, कुछ एक्स्ट्रा करना है, अलग करना है तो कर दिया अलग. देखिए अब इसका आंसर क्या रहेगा. हेस्टिंग्स ए सी साइड टाउन. सी साइड टाउन तो है, क्या इसमें एस बड़ा आएगा या ए बड़ा आएगा. नो, ए बड़ा नहीं आएगा, तो दोनों में सही ऑप्शन है. हेस्टिंग्स ए सी साइड टाउन डेवलप्ड एज अ हॉलीडे रिजॉर्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट में एफ बड़ा आएगा, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये अलग से आएगा. तो बी इसमें आंसर है. नेक्स्ट 36. स्टेटमेंट मेडिसिन पी इज अ ड्रग दैट कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड. रिपल्स मतलब कॉजिंग वेव्स, मतलब धूम मचा रही एक टाइप से, है ना. फिर क्या नो ड्रग इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड, ये तो अजम्पशन बनेगी नहीं. मेडिसिन पी इज अ ग्रेट ड्रग, ये हो सकता है. तो ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट या फिर टू, आइदर वन टू. नो, ओनली टू इज इम्प्लिसिट. बी इज द आंसर. छा गई है ये मेडिसिन. नेक्स्ट 37. स्टेटमेंट 1 है ऑल केक्स आर पेस्ट्री. ये आ गया सिलोलिज्म. ऑल के ये केक्स है और ये क्या है, ये पेस्ट्रीज हैं. सम ब्रेड्स आर केक. अब ब्रेड आ गया तो मतलब यहाँ पर ये केक भी है और ब्रेड भी है और पेस्ट्री भी हो गई इसमें, ठीक है. अब नो पेस्ट्रीज आर ब्रेड, तो ये तो ऑप्शन बनेगी नहीं. सम ब्रेड्स आर पेस्ट्री, ये हो जाएगा कंक्लूजन 2. ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, 2 फॉलोज. 2 फॉलोज है, बी इज द आंसर. नेक्स्ट 38. सेट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर गिवन ऑल्टरनेटिव. 4 का 44 है, या डैश का कितना आएगा, 7 का 77. अब इतना इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट 39. विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. अब 9, 6, 4, 24, ये 5 है. कैसे किया है, 9 + 6, 15 + 5, 20, 20 + 4, 24. ऐसा ही है ये. 9 + 7, 16 + 8, 24, 24 + 3, 27. ऐसे ये आ जाएगा. 9 + 4, 13, 13 + 8, 21, 21 + 5, 26. तो 26 is the answer. Next is 40. The book Nutmeg's Curse is written by, किसने लिखी है नटमैग कर्स, अमिताभ घोष, जेके रोलिंग, जेम्स पैटरसन, जॉर्ज ऑरवेल. It is written by Amitav Ghosh. A is the answer. Next is 41. George Orwell is the author of which of the following books? War Peace, 1984, Crime Punishment, The Trial. वॉर एंड पीस किसने लिखी है, लियो टोल्स्टॉय ने. ये हमने पहले भी किया हुआ है, आया हुआ है ये एक बार. 1984 किसकी है, जॉर्ज ऑरवेल की. तो बी इसमें आंसर है. क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी है, ये लिखी है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की. द ट्रायल लिखी है फ्रांज काफ्का ने, ठीक है. नेक्स्ट 42. विद विच मूवमेंट इन द नेम ऑफ हरिचंद्र ठाकुर एसोसिएटेड. तो करता भाजा, मटुआ,
अड़धर्म लिंगायत, मटुआ धर्म संबंधित हैं ये, वेस्ट बंगाल में है ना। अनटचेबल्स के लिए इन्होंने कार्य किया था इनके टाइम में, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 43, द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल इन राजस्थान आर बुद्धिस्ट टेम्पल, जैन, हिंदू, या जैन टेम्पल्स, बी इज द आंसर। कहाँ पर है ये? माउंट आबू में। गए हैं कभी आप? यहाँ पर कल्प वृक्ष भी है, कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष था वो आज भी वहीं पर लगा हुआ है, कभी जाए तो देखना। नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन यूरोप हैज इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन? जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, इटली। तो फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास नहीं है, क्योंकि जर्मनी इटली ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साइड थे ना, जापान जर्मनी इटली, है ना। फ्रांस किस साइड था? अलाइड नेशन के साथ, तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 45, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो कौन बनी है? नाइमा खातून, फातिमा शेख, फरहत हाशमी, खुशबू मिर्जा। नाइमा खातून, ए इज द आंसर। ये 2024 में बनी है। नेक्स्ट 46, द कन्याश्री प्रकल्प वाज लॉन्च इन वेस्ट बंगाल। ये जो है एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए पढ़ाई के लिए जो है एक स्कीम बनाई है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, उनको स्टाइफंड देते हैं जिनकी जो कि गरीब घरों से हैं। तो 2013 में स्टार्ट हुई थी। ए इज द आंसर, अभी भी चल रही है। नेक्स्ट 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? डायबिटीज, अस्थमा, मिजलिस, हाइपरटेंशन। ये मिजल्स जो है ना, ये हाईली कंटेजियस है। इसमें क्या है ना, रेड रेड डॉट्स हो जाते हैं बॉडी पे, और फीवर आ जाता है, कफ हो जाती है, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 48, द करेंसी ऑफ जापान इज डॉलर, पाउंड, रूबल, येन। डॉलर कहाँ की है? यूएस एंड सम अदर कंट्रीज। पाउंड कहाँ की है? यूके। रूबल, रशिया। येन, जापान। डी इज द आंसर। नेक्स्ट 49, हाउथी इज अ रिबेल ग्रुप बेस्ड इन इसराइल, कतर, यमन, ईरान। यमन से रिलेट करते हैं। सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज वॉन द मोस्ट नंबर ऑफ ऑस्कर्स? देखिए, टाइटैनिक, कैबरे, जंगल बुक, अवतार। टाइटैनिक ने जीते थे 11, उससे पहले एक मूवी आई थी बैनहर विच वाज ऑन द जूलियस सीजर एंड रोमन एम्पायर। दैट मूवी ऑल्सो वॉन 11 ऑस्कर्स। अब टाइटैनिक के बाद एक मूवी और आई, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, देखी हो आपने? वो पता नहीं इसको क्यों दिए हैं, इतना खर्चा किया उन्होंने, थोड़ा बहुत इनको भी दिया वो ऑस्कर वालों को। ये बैन हर, टाइटैनिक वाज, आई कैन से भाई ये अच्छी मूवीज थी, बट लॉर्ड ऑफ द रिंग मुझे इतनी 11 ऑस्कर जीतने वाली मूवी लगी नहीं, बट ठीक है, 11 मिले थे इनको भी। तो ए इसमें आंसर है। ऐसे 51, मास इज रिलेटेड टू किलोग्राम इन द सेम वे फोर्स इज रिलेटेड टू सेकंड, न्यूटन, पास्कल, जूल। न्यूटन, बी इज द आंसर। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की। नेक्स्ट 52, द नेम ऑफ राजा रवि वर्मा इज लिंक टू द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्ट, मेडिसिन। पेंटिंग एंड आर्ट। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 53, दक्षिणी वलायुधन वाज द मेंबर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्पेस मिशन, हॉकी टीम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, शी वाज द फर्स्ट फीमेल Dalit member in Constituent Assembly. A is the answer. Next 54. Saint Martin Island, recently seen in news, is located in which country? Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka. In Bangladesh. C is the answer. Next 55. Which country launched Operation Devil Hunt in February? India, Sri Lanka, Bangladesh. Bangladesh के पूछे हुए हैं ये. C is the answer. Next 56. United Nations Wildlife Day is observed on 1st March, 3rd March, 5th March, 7th March. It is on 3rd March every year. So B is the answer. Next 57. Where is the UN headquarters located? सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है ये तो। जब UN का एग्ज़ाम होता है ना, एक जब हम स्कूल में होते हैं, 7th 8th क्लास में आता है, उस टाइम पढ़ते हैं ये सब। तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। B is the answer. नेक्स्ट 58, केयर स्टारमर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ की है? मैक्सिको, यूके, पुर्तगाल, यूक्रेन। यूके।
बी इज द आंसर। नेक्स्ट 59, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑब्जर्व ऑन, कब होता है? अप्रैल 14, 4 में, 8 में, जून 2, 8th में। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 60, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज सेट अप एज पर लेजिस्लेशन इन इंडिया इन 1985, 1991, 1993। देखिए 12 अक्टूबर 1993 को जो है ऑर्डिनेंस के अंडर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के द्वारा 1993 के द्वारा उसको लेजिस्लेशन के रूप में सेटअप कर दिया गया। तो लेजिस्लेशन के लिए पूछा तो भी 1993 में ही आया था, तो सी इज द आंसर। ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो लेजिस्लेशन। 61, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज इन बेल्जियम, इटली, जर्मनी, पोलैंड। इन बेल्जियम। ए इज द आंसर। बेल्जियम में कहाँ पर है? ब्रसल्स। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रसल्स। अच्छा शहर है, जाइएगा तो घूमने। नाइस सिटी ब्रसल्स। नेक्स्ट 62, वेयर वाज द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2020 हेल्ड? इंडिया, रशिया, जापान, चाइना। इन रशिया। बी। कहाँ पर हुई थी? व्लादिवोस्टॉक। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2025? देखिए जब ये ट्रम्प आए थे लास्ट टाइम पर तो उन्होंने फिर ये पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था उस टाइम पर। फिर जो बिडेन आए तो उन्होंने फिर से साइन कर दिया। अब फिर से ये ट्रम्प आए, इन्होंने फिर से विड्रॉ कर लिया। सेकंड एग्रीमेंट जो है विड्रॉ किया इन्होंने। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 64, द वोटिंग एज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 years बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1976, 79, 89 या फिर 2002 बाय इन 89। C is the answer. By the 61st Amendment Act 1988 जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 89 से वो था, तो C इसमें आंसर है। नेक्स्ट 65, द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल है या फंडामेंटल ड्यूटी है? नेशनल पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ड्यूटी, बोथ। देखिए जो ये चीज़ है लिखी हुई है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखी हुई है आर्टिकल 48A में, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा हुआ है 51A क्लॉज G में। थोड़ा सा अलग है, उसमें रिवर्स एंड लेक्स के लिए भी लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो थोड़ा डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखें तो हम ये DPS पे लगा सकते हैं, अदरवाइज बोथ भी आंसर हो सकता है। अब इसमें भी एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पर एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ये वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। जैसे कि इसमें जो है अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी मानेंगे तो यहाँ पर रिवर्स एंड लेक्स यूज़ नहीं किया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग कर दिया। ये जो है पहले हरियाणा जुडिशरी में आया था एग्जाम में पेपर ये, और वहाँ पर भी कन्फ्यूजिंग था काफ़ी, बाद में इसको डिलीट ही कर दिया था। नेक्स्ट 66, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ सानम कमेटी, सरकारिया कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, गांधी कमेटी। इट वाज स्वर्ण सिंह कमेटी। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 67, freedom of conscience and the right to freely profess and practice any religion is recognized in Indian Constitution in Article 14, 25, 32, 40। अब 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, सब जानते हैं। बी इसमें आंसर। 32 क्या है? रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। Next 68, which among the following is correct regarding amendment of the Constitution of India affecting its federal character? Can be amended by simple majority या फिर can be amended by 2/3 majority of both houses, 2/3 majority of parliament and ratification by at least half the states. C इसमें आंसर है। अब ये फेडरल कैरेक्टर क्या है? देखिए अगर आप आर्टिकल 368 देखेंगे उसमें क्लॉज 2 है और उसमें प्रोवाइजो लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर ये चैप्टर वो, ये सारे क्या हैं? यूनियन वाले जो आर्टिकल, यूनियन वाले, स्टेट वाले, प्रेसिडेंट, उनके इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट वाले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो प्रोविजंस हैं वो, ठीक है ना। तो उनको आप जो है इस 2/3 मेजोरिटी और रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ द स्टेट से करके ही कर सकते हैं। मतलब टफ है उसको अमेंड करना, है ना। तो सी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 69, ए लॉ विच एब्रिजेस फंडामेंटल राइट इज नॉट एन नलिटी बट रिमेन्स इनऑपरेटिव टिल द शैडो ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉल ओवर सच राइट।
दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पिथन सब्सटेंस इक्लिप्स सर्विलिटी। शैडो जहाँ पे भी देख लिया आपने तो मतलब क्या है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये है मून, और ये है मून, और यहाँ पर अगर सन है, जहाँ भी शैडो पड़ेगी इसकी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर इक्लिप्स हो जाएगा, ऐसे ही इक्लिप्स हो जाएगा ये। सी इज दी आंसर। नेक्स्ट 70, वेयर डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फाइल्ड एंड सेटल्ड, कहाँ पर होंगे, सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में, पार्लियामेंट, आईसीजे। आईसीजे में जाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ही कर देगा। ए इज दी आंसर। कहाँ मेंशन किया हुआ है, इन आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट 71, ए लॉ मेड बाय पार्लियामेंट हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन शैल नॉट बी डीम्ड इनवैलिड, या फिर डीम्ड इनवैलिड, या फिर डीम्ड अल्ट्रा वायरस, बी डीम्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉट बी डीम्ड इनवैलिड, ए इज द आंसर। कैसे, आर्टिकल 245 क्लॉज 2 प्रोवाइड करता है कि नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस, है ना, ए इसमें आंसर है। नेक्स्ट 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन ए सब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम कंट्रोवर्सी एंड लिटिगेशंस। अब देखिए ये क्वेश्चन में कहूँगा कि क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे देखेंगे बहुत सारे केसेस आए। अब काउंट कौन करेगा, हाउ दे डिटरमाइंड कि भाई इस पे सबसे ज़्यादा हुए, इस पे सबसे ज़्यादा हुए, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रिट पिटिशन तो इतने के सारे केस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पर ही लगते हैं। तो मैं कहूँगा द क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर, बट यू कैन से राइट टू प्रॉपर्टी था, इसलिए इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, फंडामेंटल राइट से हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं। बट आज की डेट में अगर आप काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही आ रही हैं, है ना। पहले क्या था, 91F था, फिर 300A हो गया, बाय दी 44th अमेंडमेंट चेंज कर दिया था। आई वुड से द क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर। नेक्स्ट 73, व्हाट इज द मिनिमम गैप परमिसिबल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, 6 months, 4 months, 6 months, 10 days, 90 days, 6 months, ए इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया गया है, इन आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। Next 74, on which date Supreme Court upheld the OBC quota in central education institutions, clearing the way of reservation of 27% seats for backward classes। तो ये पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए ये केस आया था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2008 की जजमेंट है ये, और 10 अप्रैल को डिसाइड हुआ था, तो ए इज द आंसर। Next 75, under which one of the following cases traditional rule of filing petition only by the person aggrieved except in the case of habeas corpus is relaxed? त्रिलोकचंद मोतीचंद, या फिर जोगिंदर नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रविंद्रनाथ बोस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उपेंद्र बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 76, the fundamental duties incorporated in Article 51A of the Constitution are mere reminder to the citizens with no enforceability to ensure their compliance, was said by Subhas Kashyap, Justice J.S. Verma, Justice V.R. Krishna Iyer, Justice Sikri। Justice J.S. Verma, B is the answer। Next 77, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, पब्लिक ऑर्डर पे कर सकते हैं, हेल्थ पे, मोरालिटी पे कर सकते हैं, सिक्योरिटी और स्टेट पे नहीं कर सकते। बी इज दी आंसर। नेक्स्ट 78, द राइट ऑफ एजुकेशन केम इनटू फोर्स इन इंडिया इन 2010। तभी तो अमेंडमेंट आई थी आर्टिकल 21A की, एंड ये आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में जो है 11th ड्यूटी जो के है वो ऐड की गई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 2010। तो ए इसमें आंसर है, और डेट क्या थी, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट 79, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास बाय पार्लियामेंट इन इंडिया, 10 मार्च 2019, 11 दिसंबर, 12 मई, ऑन 11 दिसंबर 2019। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 80, in which article of the Constitution of India are the fundamental duties of the citizens referred to? सब जानते हैं, 51A कितने में बताया, अभी तो बता ही दिया 2-3 बार तो मैंने। डी इज दी आंसर। 40 वही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। 19 फ्रीडम्स।
Next is 81. According to the Article 22(4), no detention of any person is possible without the intercession of the advisory board for a period exceeding 3 months, 2 months, 12 months, 1 month. 3 months. A is the answer. 3 months से ज़्यादा किसी को भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं रख सकते. A इसमें आंसर रहेगा. Next is 82. The definition of appointment terms etc. of the governor of the state has been given in पार्ट तो 6 है. देखिए सब में 6 है. चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है 2. चैप्टर 1 एंड 2 नहीं है. चैप्टर 2 है तो यही आंसर हो जाएगा. आर्टिकल 153 से 162 है तो सी इसमें आंसर हो गया. नेक्स्ट 83. इलेक्शन टू द विधान परिषद आर हेल्ड बाय. विधान परिषद क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना. डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इनडायरेक्ट होंगे, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. डी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज 84. In case of A.K. Gopalan versus State of Madras, the Preventive Detention Act 1950 was found conflicting with two articles. कौन कौन से? 14, 17, 19, 21, 23, 25, 23, 32. 19 and 21 freedom and life to liberty वाला. B is the answer. Next 85. Which article of the Constitution provides for the appointment of Comptroller and Auditor General of India? CAG जो बोलते हैं. 148, 178, 238. It is 148. B is the answer. 148 से और 151 तक प्रोविजन है कैग के. Next 86. The Constitution of India derives its authority from people of India या फिर Parliament या फिर Supreme Court Constituent Assembly. From people of India. A is the answer. Next 87. The oath is administered to the President of India by चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. यही ठीक है. प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, सीनियर जज और नो. अगर सीजीआई नहीं होंगे तो सीनियर जज आ जाएंगे फिर, है ना. तो ए इसमें आंसर रहेगा. कहाँ प्रोवाइड किया गया है? इन आर्टिकल 60 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट 88. पेटिशन टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ रेस जुडिकाटा एक्सेप्ट क्यू वारंट ऑफ सर्चुरी हैबियस कॉर्पस प्रोहिबिशन. तो कौन से रीट में रेस जुडिकाटा नहीं लगता? हैबियस कॉर्पस में. सी इज द आंसर. This is 89. Under section 89, the court shall formulate the terms of settlement and give them to parties for their observation, and after receiving the observation of the party, the court may formulate the terms of possible settlement and the same for arbitration, conciliation, judicial settlement including settlement through लोक अदालत, मीडिएशन. सारे ही हैं. ऑल ऑफ द अबव. डी इसमें आंसर रहेगा. Next is 90. Under section 89, the court may refer the matter to. देखिए इस पेपर में कई बार देखा गया है कि कई क्वेश्चंस में ये सेम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं 2-3 बारी. अब 89 में क्या है? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत. नेगोशिएशन नहीं है, सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस नहीं है. तो क्या बच गया फिर? लोक अदालत. सी इज द आंसर. Next is 91. Which of the following suit is not triable under the CPC? सूट फॉर राइट टू फ्रेंचाइज ये है. राइट फॉर अपहोल्डिंग मेयर डिग्निटी और ऑनर ये वाला नहीं होता, सिविल नेचर. सूट रिलेटिंग टू टेकिंग आउट ऑफ रिलीजियस प्रोसेशन ये हो जाएगा. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वाला हो जाएगा. तो बी इसमें आंसर होना चाहिए. सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में कहाँ प्रोवाइड किया गया है? सीपीसी में सेक्शन 9. Next 92. Under which of the following orders can the court direct attachment of property before judgment is being delivered in the pending matter? और देखिए मैंने हर बार डिस्कस किया है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये. और जब भी ऑर्डर आते हैं मैं हमेशा बताता हूँ सारे ऑर्डर्स. और 37 क्या है? समरी प्रोसीजर. 38 इज आंसर. बी इज द आंसर. 39 क्या है? टेम्परेरी इंजंक्शंस. 14 क्या है? सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. Next 93. Which of the following deals with where the subject matter of the suit is immovable property of the CPC? 530 क्या है? Substitution of letter instead of summons. ठीक है. 912 consequences लिखे हुए हैं for non attendance. Order 7 Rule 3 क्या है? यही है.
जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है, तो सी इसमें आंसर हो गया। ऑर्डर 10 में 22 है ही नहीं, इसमें सिर्फ 4 रूल्स हैं। ऑर्डर किसके लिए है? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के लिए। नेक्स्ट 94, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज रिलेटेड टू मैक्सिमम एक्शन पर्सनलिस मोरिtur कम पर्सोना, मतलब पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, पर्सन खत्म तो एक्शन खत्म। ऑर्डर 20 क्या है? जजमेंट। 21 क्या है? एग्जीक्यूशन। 22 क्या है? डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी, तो यही आंसर है, सी इज द आंसर। ऑर्डर 23 क्या है? विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, है ना। नेक्स्ट इज 95, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कंटेन्स द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, कहाँ पर है? सेक्शन 13 एंड 14, जहाँ फॉरेन डिक्री को जो है आप एग्जीक्यूट करवाते हैं, है ना, प्रिजम्पशन आती 14 में, तो इसमें ए आंसर रहेगा। 15, 16, 17 किससे रिलेट करते हैं? ज्यूरिसडिक्शन से। नेक्स्ट इज 96, in which of the following cases the court has held the inherent powers has not been conferred on court, it is a power inherent in the court? रजनीबाई कमला देवी, सत्यव्रत विश्वास वर्सेस कल्याण कुमार किस्कू, पीसी जयरथ वर्सेस अमित जयरथ, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल। सब जानते हैं मनोहर लाल वाला केस है, ये सीपीसी में पढ़ते ही हैं, सेक्शन 151 पे हम ये। डी इज दी आंसर। 97, which of the following deals with the time of inspection when notice is given in CPC? Order 16 rule 12 क्या है? Process when witness fails to appear. Order 4 में कितने रूल हैं? सिर्फ 2 हैं। Order 6 क्या है? Pleading। और रूल 10 क्या है? malice, knowledge, malice है ना इन प्लीडिंग। आंसर क्या रहेगा इसमें? ऑर्डर 11 रूल 17, डी इज दी आंसर। डिस्कवरी इन सेक्शन का ऑर्डर कौन सा है? 11। नेक्स्ट इज 98, मीन प्रॉफिट अंडर सीपीसी कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? सेक्शन 212 ऑफ सीपीसी मीन्स दोज प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्स और माइट हैव रिसीव्ड टुगेदर विद इंटरेस्ट। ये ठीक है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय सच पर्सन, ना जो इम्प्रूवमेंट कह रहे हैं वो नहीं आएगा। सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड बट विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉपर्टी, सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड। ए इज द आंसर। This is 99, where there are two courts which would normally have the jurisdiction. An agreement to file suit in one of those court alone is क्या void है, valid है, voidable है, unenforceable? It is valid, valid रहेगा। दो सिमिलर कोर्ट्स के पास तो आप एक में जाने के कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप ये एग्रीमेंट करेंगे कि कोई से कोर्ट में नहीं जाना, हम तो वहां जाएंगे, वो एग्रीमेंट इज void। नेक्स्ट इज 100, एग्जामिनेशन डी बैन एस अंडर ऑर्डर 18 रूल 16 मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बिफोर द हियरिंग, आफ्टर द हियरिंग, या फिर कोर्ट में मेक लोकल इंस्पेक्शन एट एनी स्टेज ऑफ सूट, या फिर डिसेबल विटनेस कैन ऑथराइज एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स डिपोज ऑन दिस बिहाफ। बिफोर द हियरिंग, किसी को जल्दी भी, किसी को कहीं जाना है, मान लो बाहर जाना है, कोर्ट की परमिशन से वो पहले एग्जामिनेशन कर सकते हैं उस विटनेस का, तो ए इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 101, डिविजनल पावर ऑफ हाई कोर्ट अराइजेज व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, ये ठीक है। फेलियर टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन वेस्टेड इन इट बाय लॉ, फिर एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ जुरिडिक्शन इलीगली, तीनों ही हो जाते हैं, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? देखिए आर हम देखिए हम हर बार इसको डिस्कस करते हैं। 113, 114, 115 रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, तो ये क्या है? 115 है, डी इसमें आंसर है। Next is 102, in which of the following cases it was held that second appeal is permissible only if the finding is perverse? तो दिनेश कुमार वर्सेज यूसुफ अली, स्टेट वर्सेज एमएल केसरी, बिमलेश वर्सेज न्यू इंडिया इंश्योरेंस, दशरथ वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। ये है दिनेश वर्सेज यूसुफ अली, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 103, which of the following deals with suits against foreign rulers, ambassadors and envoys in the CPC? सेक्शन 90 क्या है? स्टेट टू टेक ओपिनियन फ्रॉम कोर्ट, है ना, सेक्शन 90 में लिखा हुआ है।
86 यही आंसर है, 20 में आंसर हो गया। एंड 82 क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के बारे में। नेक्स्ट 104, एन ऑर्डर अंडर ऑर्डर 33 रूल 11 directing a pauper plaintiff to pay the court fees can only be made in which of the following cases where the plaintiff fails in the suit, ये बिल्कुल हो जाएगा जी। where the plaintiff is dispauper under rule 9, यहाँ नहीं होगा। where the suit is withdrawn, yes। where the suit is dismissed under circumstances specified in clause A और B in rule 11। तो 1, 3 and 4 इसमें ठीक है, तो 1, 3 and 4 यही रहा, ये रहा, A is the answer। C105, A sues B for declaration of title to land and obtains a degree. A then sues C for possession. C contends that B is the owner and that he is in possession of B's tenant. As B's tenant. Defense is not barred, defense is barred. ये रेस जुडिकाटा लग जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल जी लग जाएगा यहाँ पे, तो बार हो जाएगा। B is the answer। सेक्शन कौन सा रेस जुडिकाटा का? 11 CPC। Next is 106, which of the following deals with the power of Supreme Court to transfer suits etc. in the CPC? Section 11, 20, 25, 28। 18 क्या है? जहाँ पर जुडिक्शन अनसर्टेन हो, है ना। 20 अबाउट दी टोर्ट और डैमेजेस वाले केस का जुडिक्शन। 25 ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट, सी इज दी आंसर। 28 क्या है? समन्स के बारे में है, व्हेन defendant resides in different state। C107, at the stage of evidence, the counsel of the plaintiff filed an application for adjournment, which was rejected, and the suit was dismissed for lack of evidence. The plaintiff has a remedy to file fresh suit, first appeal, revision, none of the above। First appeal, A, B is the answer। सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन इज 96 लग जाएगा यहाँ पे। Next 108, under which of the following circumstances will the principle of res judicata not apply? एक्सपायर्ड डिग्री पर हो जाएगा, हाँ जी। डिसमिस्ड ऑन मेरिट तब भी हो जाएगा। डिसमिस्ड इन लिमाइन मतलब एट द थ्रेशोल्ड, मतलब स्टार्टिंग में ही उसको डिसमिस कर दिया, तो यहाँ नहीं लगेगा। तो आंसर ही नहीं है, तो सी इज द आंसर, यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगेन सेक्शन 11 CPC रेस जुडिकाटा। C109, under section 161 CRPC, the investigating police officer has the power to examine orally any person acquainted with the facts and circumstances of the case। The expression any person acquainted with the facts and circumstances of the case includes accused या फिर does not include accused, या फिर refer to prosecution witness only। includes accused कोई भी हो सकता है ना। A is the answer। अब ये 161 हो गया सेक्शन 180 इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Next is 110, under section 156(3) CRPC, the power to direct investigation is vested with हाई कोर्ट, सेशन जज या फिर मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के पास है 156(3) में, तो सी इज दी आंसर। अब ये हो गया है सेक्शन 175 सब सेक्शन 3 इन BNSS। Next is 111, no court shall take cognizance of a continuing offence after 6 months, 1 year, 3 year। the continuing offence में there is no limitation, so D इसमें आंसर रहेगा, none of the above। सेक्शन है ये 472 इन CRPC। अब हो गया सेक्शन 518 इन BNSS। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में तो कंटिन्यू करता रहेगा टाइम। Next is 112, the investigating police officer in a case has power to require attendance of a person acquainted with the facts and circumstances of the case under section। देखिए स्टेटमेंट कहाँ लेते हैं 161 में, तो बुलाते कहाँ हैं 160 में। सी इज द आंसर। अभी 160 हो गया है 179, 161 बता ही दिया, 180 हो गया है इन BNSS। सी इसमें आंसर है। Next is 113, statement of a witness recorded during investigation under section 161 CRPC cannot be used at a criminal trial except to contradict the witness। ये mention है section 162 में। When the witness dies after recording the examination in chief before cross examination commences, where the court feels that it would be safe to rely upon। ये सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज हो सकती है, कोरोबरेशन के लिए नहीं हो सकती है ना। अगर डेथ होगी तो कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे फिर, तो ए इसमें आंसर रहेगा। सेक्शन बताई दिया 161 हो गया, 180, 162 हो गया, 181 इन BNSS।
Next, in 114, under the CRPC, if a woman sentenced to death is found to be pregnant, her death sentence may be commuted to imprisonment for life by the High Court in consultation central government, High Court in consultation with high state government, या फिर central state government, High Court. High Court, D is the answer. सेक्शन कहाँ है? सेक्शन 416 इन CRPC अब हो गया है 456 इन BNSS. Next is 115. Under section 459 of CRPC, the magistrate may order for the selling of property by the government if no claimant appears within 3 months, 6 months, 1 year, 3 years. Yes, within 6 months. B is the answer. पावर जो है ये दी हुई है 459 में. अब हो गई है सेक्शन ये पावर जो है आ गई है सेक्शन 505 इन BNSS. Next is 116. Which section of the CRPC prohibits the male police officer from touching the person of a woman while making her arrest? ये कहाँ लिखा हुआ है जहाँ पर हम अरेस्ट करते हैं? अरेस्ट हाउ मेड है ना. वो सेक्शन कौन सा है? 39 है, 49 है, 69 है या फिर 46 है? दिस इज सेक्शन 46 CRPC. डी इज द आंसर. अब हो गया है ये 43 इन BNSS. राइट. Next is 117. Which of the following section of CRPC is related to interpreter is bound to interpret truthfully? 272 है या 280 या फिर 282, 284. This is section 282. C is the answer. Now this is section 317 in BNSS. Next is 118. Where the magistrate takes cognizance of the offence on a complaint made to him and considers before the issue of process to the accused that the matter should be investigated, such investigation can be ordered under section 156(3). यहाँ पे तो पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट है ना पुलिस को ऑर्डर करने की फॉर इन्वेस्टिगेशन. 190 में पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट प्रोवाइड किया हुआ. 173(8) क्या है ये? दिस इज फॉर चार्जशीट एंड ऑल दैट. सेक्शन कौन सा लगेगा इसमें? 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू. डी इज द आंसर. अभी 202 हो गया है 225 इन BNSS. 119. द भारतीय न्याय संहिता केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम. देखिए अभी 2016 का पेपर हमने जब किया था मैंने वहाँ भी बताया था. 2017 में बताया था. सारे बताए थे ये कि ये क्वेश्चन आ सकता है. देखिए आ गया ना. 1 नंबर तो बन ही जाता है इससे. तो कब इफेक्ट में आया था? फ्रॉम 1 जुलाई 2024. ए इज द आंसर. इनेक्ट कब हुआ था? 23 दिसंबर 2023. अब ऑलराइट. नेक्स्ट 120. द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम आर. क्या होते हैं? मोटिव, मेंस री, एक्टस रियस, एक्टस रियस, मेंस री. सी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 121. जनरल एक्सेप्शंस आर कंटेन्ड अंडर चैप्टर 3, 4, 5 या 6. चैप्टर 4 IPC. बी इज द आंसर. सेक्शन कहाँ से कहाँ तक थे जनरल एक्सेप्शंस के? 76 से और 95 तक. फिर 96 से जो है 106 तक क्या है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. ऐसे है. ठीक है ना. अब चेंज हो गए हैं सेक्शंस ऑब्वियसली. अब चैप्टर हो गया है ये 3. और सेक्शन कौन से कहाँ तक जरा लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में आप. 20 में आंसर है. नेक्स्ट इज 122. द एक्सप्रेशन हार्म इज यूज इन सेक्शन 81 ऑफ IPC इन द सेंस ऑफ हर्ट, फिर इंजरी और डैमेज या फिजिकल इंजरी, मोरल रॉन्ग और इविल. इंजरी और डैमेज. बी इज द आंसर. अभी 81 हो गया सेक्शन 19 इन BNS भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 123. पनिशमेंट फॉर ऑफेंस ऑफ कमिटिंग फोर्जरी इज प्रोवाइडेड इन. नेक्स्ट 124. वर्ड्स, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन अंडर सेक्शन 509 ऑफ IPC इज पनिशेबल विद simple imprisonment for a term extending up to 1 year or fine, 1 year or 3 year or fine or both. इसमें सिंपल 3 ईयर और फाइन रहता है तो सी इसमें आंसर है. अब हो गया है ये सेक्शन 79 इन भारतीय न्याय संहिता. नेक्स्ट 125. 10 persons were charged for the offence under section 302, 149, out of which 6 persons were acquitted. The remaining 4 cannot be commuted for the offence under 302 read with 149.
कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस 302 या फिर कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ 149। देखिए कन्विक्शन कहाँ हो रही है, सिंगल कन्विक्शन नहीं है 149 की, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये होगा 1302 149। तो इसमें हो क्या सकता है, दे कैन बी कन्विक्टेड फॉर 302, तो ऑप्शन जो है इसमें ये परफेक्ट बनेगा, ए इज द आंसर। इसके लिए आप जो है केस भी देख सकते हैं, एक सुब्रान एट सुब्रमण्यम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये बिल्कुल डिट्टो इसी मैटर पर है, आप देख सकते हैं केस, ठीक है ना, ए इसमें आंसर है। नेक्स्ट 126, ऑपरेशन ऑफ कंसेंट टू ऑल ऑफेंसेस शॉर्ट ऑफ कॉजिंग डेथ इंटेंशनली हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंडर। अब देखिए अब इसमें जो है ना हाई फाई इंग्लिश यूज़ कर दी है, मतलब सेंटेंस को घुमा फिरा के एक सिंपल सी चीज़ बोल दी है। क्या, ऑपरेशन ऑफ कंसेंट टू ऑल ऑफेंसेस, मतलब ऑपरेशन मतलब यूज़ ऑफ कंसेंट या फिर कंसेंट कैसे दी है उसको कैसे यूज करना है। शॉर्ट ऑफ कॉजिंग मतलब शॉर्ट के रहने का क्या मतलब हो गया, नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ इंटेंशनली, है ना। हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंडर कौन सा सेक्शन है ये, 88 90 21 87 आईपीसी, इट इज 87 आईपीसी, डी इज द आंसर। 87 हो गया है अब सेक्शन 25 इन बीएनएस। वॉलंटियर नॉन फिट इंजीरिया कहाँ आता है, 88 में, ये हम कर चुके हैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स में, वेस्ट बंगाल के ही है ना। अभी 88 हो गया 26 एंड सो ऑन। Next 127, X put Jewel into a box belonging to Y with the intention that they may be found in that box and that this circumstance may cause Y to be convicted of theft. X has charged Y for misappropriation of property if fabricated false evidence. या फिर prosecuted Y on the charge of theft. ये क्या किया X ने, fabricate किया false evidence. B is the answer. सेक्शन है ये 192 और इसमें illustration A है। अब ये सेक्शन हो गया है 228, इलस्ट्रेशन इज सेम, 228 इन भारतीय न्याय संहिता। Next 128, if a person entrusted with money diverts it for his personal gain without intending to deceive, which section would likely to be invoked? 420 क्या है, चीटिंग का, चीटिंग में क्या होता है, डिसेप्शन, ठीक है ना। 406 क्या है, सीबीटी की पनिशमेंट। 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो यही इसमें आंसर आएगा, बी इज दी आंसर। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं, सेक्शन हो गया है सीबीटी का अब 316 इन बीएनएस। ऐसी 129, ए गवर्नमेंट सर्वेंट removed a file from his colleague's office to his house, made it available to an outsider and then turned it back to the office the same day in the evening. A is guilty of which of the following offense? Criminal misappropriation of property, theft या फिर criminal breach of trust? This is theft. मूव कर दिया जैसे आपने कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट, तो क्या हो जाता है, थेफ्ट, एज पर सेक्शन 378 आईपीसी। अब हो गया है 303 इन बीएनएस, ठीक है। अब ये केस कौन सा है जरा बताओ, केस है ये प्यारे लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑलराइट। नेक्स्ट 130, Section 32 of Indian Evidence Act does not speak of which of the following kinds of persons? Person who is dead, cannot be found, who is unwilling to give evidence, इसको नहीं यहाँ पर ये करते, तो ये काइंड ऑफ पर्सन जो है इसमें बात नहीं करता 32 में। Who has become incapable of giving evidence, ये आ जाता है 32 में, तो सी नहीं आएगा, सी इज द आंसर। 32 एविडेंस एक्ट हो गया है सेक्शन 26 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next is 131, which one of the following is not a public document? पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में कहाँ मेंशन किया गया, सेक्शन 74 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 74 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों सेम है सेक्शन। ए डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एक्ट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, ये पब्लिक है। फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ ऑफिशियल बॉडी, यस। एक्ट्स ऑफ द ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस। डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग द एक्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो तो प्राइवेट हो गए ना उनके, पब्लिक नहीं है, तो डी इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 132, द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज कंटेन्ड इन सेक्शन 109 110 111 112। 110 कितनी बार रिपीट हुआ है वेस्ट बंगाल में,
मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस पेपर में। अभी सेक्शन 110 कितना हो गया है, 113 इन बी एस ए। Next 133, a leading question has been defined as a question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive under, है ना। पूछा हुआ सेक्शन 140, 141, 142, 143, ये है 141, बी इज द आंसर। अब हो गया सेक्शन 146 इन बी एस ए। अब बहुत सारे सेक्शन थे लीडिंग क्वेश्चन के, है ना, 142, 143 भी था, तो सारे जो है इकट्ठे कर दिए 146 में, और ठीक भी किया। नेक्स्ट 134, बर्डन ऑफ प्रूफ पार्शली डिटरमाइंस द राइट टू बिगिन, या फिर सब्सटेंशियली डिटरमाइंस द राइट टू बिगिन, या फिर होली डिटरमाइंस द राइट टू बिगिन। पार्शली डिटरमाइंस है ना, शिफ्ट करेगा, फिर ए इज द आंसर। बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ पर है, चैप्टर 7 ऑफ एविडेंस एक्ट, सेक्शन कहाँ से, 101 से और 114 ए तक। मैक्सिमम बर्डन ऑफ प्रूफ तो ये 110 तक ही खत्म हो जाता है। अब लेकिन चैप्टर तो ये 7 ही है, बी एस ए में सेक्शन बदल गए हैं, सेक्शन हो गया 104 से और 120 तक। नेक्स्ट 135, एन अकम्प्लिस इज अ कंप्लीट विटनेस। देखिए कितनी बार बताया है आपको ये। 118 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या है, हु कैन बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, विटनेस के लिए। 119 डम्ब विटनेस, 133 अकम्प्लिस, यही आंसर है, सी इज द आंसर। अब हो गया 138 इन बी एस ए। 136, बेस्ट एविडेंस रूल इज एक्सक्लूसिवली एसोसिएटेड विद रूल लेड डाउन इन। 62 क्या है, प्राइमरी एविडेंस। 90 क्या है, प्रिजम्पशन एज टू 30 ईयर ओल्ड डॉक्यूमेंट। 93 क्या है, ये पेटेंट एम्बिग्यूटी के बारे में है। 91 रिगार्डिंग दी एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस व्हेन देयर इज रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल। बेस्ट एविडेंस रूल क्या है, प्राइमरी एविडेंस इज बेस्ट एविडेंस, ए इज द आंसर। 137, X granted an injunction restraining Y from the use of trademark. X alleged that Y had willfully disobeyed the injunction order. Y pleaded that he had no knowledge of the injunction order. Evidence was non-conclusive. The court shall order the property of Y to be attached. अब देखिए ये जो इंजंक्शन है, ये एविडेंस कैसा दिया है, नॉन कंक्लूसिव, मतलब उससे कोई प्रूफ नहीं हुआ कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इंजंक्शन के ऑर्डर के बारे में पता था, उसने जो विलफुली जो है डिसोबे किया है, तो कोर्ट क्या करेगा। अब उसके लिए जो है ऑर्डर 39 में लिखा हुआ है कि इंजंक्शंस विलफुली डिसोबे करने पर उनको उनकी प्रॉपर्टी टैच कर सकते हैं, सिविल प्रिजनमेंट डाल सकते हैं, तो प्रॉपर्टी टैच कर लेंगे। तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा ना ये गड़बड़ बनाया हुआ है, ठीक नहीं बनाया हुआ। एक वुड बी दी आंसर, बट सिविल प्रिजनमेंट में डाल सकते हैं, है ना। IC 138, confession caused by inducement, threat or promise is contained in 24 evidence act, repeat question again, A is the answer। अब हो गया सेक्शन 22 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। IC 139, सेक्शन 108 एविडेंस एक्ट, कितनी बार मैंने डिस्कस किया है। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है ये, यही आंसर है, ए इज द आंसर। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ 107 में, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी 112 एविडेंस एक्ट में, ठीक है, ये नहीं है, तो ए इसमें आंसर है। अब चेंज हो गए सेक्शन, अब ये 107 हो गया है 110, 108 हो गया 111, ये 112 हो गया है 116 इन बी एस ए। Next 140, the doctrine of estoppel is a substantive law, rule of equity, rule of evidence, law of pleadings। It is rule of evidence, C is the answer। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, सेक्शन 115 एविडेंस एक्ट। अब आ गया है 121 BSA में। Next 141, during re-examination of a witness, a new matter can be introduced as a matter of right, generally no। A new matter can be introduced only with the permission of the court। तो B इसमें आंसर है। कहाँ मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 138 ऑफ एविडेंस एक्ट में। अब हो गया ये 142 इन BSA। Next 142, in dying declaration can form the sole basis of conviction without any corroboration by independent witness। बिल्कुल ठीक है। Only on corroboration wrong है, unless corroborated no। A is the answer। Section is 32
अब हो गया ये 26 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। Next 143, cross examination of one's own party is permissible है, permissible only after obtaining the permission of the court। कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं। बी इज दी आंसर। सेक्शन कौन सा है? 154 हॉस्टाइल विटनेस वाला। अब हो गया 158 इन बी एस ए। अब हो गया 157 इन बी एस ए। Next 144, in criminal proceedings the burden of proof is on the prosecution to prove the guilt of the accused, obviously on the accused to prove his innocence। No, both the parties no, A is the answer। Next 145, presumption as to dowry death is contained in 111A या फिर 113A या फिर 13B? 13B, C is the answer। 13A में क्या है? presumption as to abatement to suicide, है ना। अब सेक्शन चेंज हो गए हैं, ये 113A हो गया है 117 और ये B हो गया 118। C इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट 146, एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट ए फैक्ट इज सेड नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज प्रूव्ड इनकरेक्ट व्हेन द कोर्ट बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर व्हेन द प्रूडेंट मैन कंसीडर दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। डी इज द आंसर। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में लिखा हुआ है एविडेंस एक्ट में। अब हो गया सेक्शन 21I इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट 147, सेक्शन 121 एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिविलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। कहाँ है? 122 में। जजेस एंड मैजिस्ट्रेट 121 में है, तो बी इज द आंसर। अफेयर्स ऑफ स्टेट 123, ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124, एविडेंस एक्ट। चेंज हो गए हैं ऑब्वियसली। अब जजेस एंड मैजिस्ट्रेट हो गया 127, हस्बैंड एंड वाइफ 128, अफेयर्स ऑफ स्टेट इज 129, ऑफिशियल कम्युनिकेशन 130 इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सारे क्वेश्चन रिपीट है एविडेंस एक्ट में। तो कोई क्वेश्चन दिखा दो मेरे को कि तो पहले नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट 148, अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट इफेक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड। देखिए अगेन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ दिया। 2 नंबर तो आपके यहीं बन जाते हैं। व्हेन दी कोर्ट बिलीव्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर से वही फैक्ट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। सी इज द आंसर। सेक्शन वही है 21I इन बी एस ए। नेक्स्ट 149, अंडर सेक्शन 118 whom the following are competent witness। चाइल्ड भी है, अक्यूज भी है, यूनेटिक भी है, ड्यूरिंग इंटरवल अगर है तो ऑल ऑफ दी अब इसमें आंसर रहेगा। डी इज दी आंसर। अभी 118 हो गया है 124 इन बी एस ए। Next 150, under section 45 of evidence act the opinion of expert can be for identity of handwriting, identity of finger impression, both C is the answer। 45 हो गया 39 in BS। अब देखिए बताओ, रिपीट क्वेश्चन नहीं है क्या सारे? बताओ। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। ऐसी 151, अब ये कौन के क्वेश्चन आ गए। एन एग्रीमेंट इन कनेक्शन विद हॉर्स रेसिंग अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एक्ट इज अनलॉफुल, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड। बताओ क्या होना चाहिए? ये रिपीट क्वेश्चन है। अभी पहले पूछा था कि 30 की एक्सेप्शन क्या हो सकती है, हॉर्स रेसिंग थी। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ये वैलिड है जी। ये डी में आंसर रहेगा सेक्शन 30 वेजरिंग एग्रीमेंट्स में। नेक्स्ट 152, rescission of a contract means renewal, cancellation, alteration, substitution of new। Alteration is alteration, substitution is novation, rescission is cancellation। B is the answer। सेक्शन 62 में मेंशन है तीनों ना, novation, alteration, rescission। Next is 153, if only a part of consideration or object is unlawful, the contract under section 24 shall be valid, voidable, void, illegal। void रहता है जी। C is the answer। Next is 54, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is an agreement as per section 2H of contract act। कितना easy questions है। A is the answer। Next is 155, a guarantee obtained by misrepresentation or concealment is invalid, valid, voidable, illegal। it is invalid। B is the answer। section is 142 in contract act। Next is 156,
एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ अंडर सेक्शन 56 इज क्या हो जाता है? वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, इट इज वॉइड। बी इज द आंसर। SC 157, an agreement enforceable by law at instance of one party and not of other party under section 2I of Indian Contract Act is called as a valid, illegal या फिर voidable contract. It is a voidable contract. D is the answer. Void contract कहाँ है? 2J में. SC 158, an agreement not to raise the plea of limitation is valid, binding, void, voidable, illegal. अब देखिए सेक्शन 23 क्या कहता है? अगेंस्ट द लॉ है अगर, या फिर इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है ना, क्या रहते हैं वो? वॉइड। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 161, a tenant is occupying a landlord's property without any formal lease agreement. The landlord wants to evict him. What is the limitation period to file a suit? अब देखिए पहले इसने क्या बोला यहाँ पर? टेनेंट। ओके, अब टेनेंट ने ऑक्यूपाई किया मतलब पहले तो वो पैसे दे रहा था, तभी तो टेनेंट बना ना। फॉर्मल लीज नहीं है, दैट डजंट मैटर। पैसे दे रहा था तो वो ले रहा था लैंडलॉर्ड, इसका मतलब टेनेंट था, ठीक है ना। तो ये अनलॉफुल पोजेशन नहीं है, ट्रेस पास नहीं है। तो टेनेंट से डिटरमाइन हो जाएगी जब वो पैसे देने उसने बंद कर दिए। कितना रहेगा फिर ये टाइम पीरियड? अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन जो है डेट ऑफ पोजेशन कर दिया। 12 ईयर फ्रॉम अ डेट व्हेन टेनेंसी इज डिटरमाइंड। जो टेनेंसी खत्म हो गई, नोटिस दे दिया, खत्म हो गई, तब वहाँ से 12 साल ले सकते हैं। तो सी इसमें आंसर रहेगा। आर्टिकल है ये 67 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। SC 162, a promissory note states that a payment is due after demand. The creditor never makes a demand. What happens to the limitation period? It never begins. Begin तो रहेगा भाई, time start हो गया, nothing can stop that. It starts when the promissory note is executed या फिर when the reasonable time passes after execution या only when debtor acknowledges the debt. आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है। कहाँ से? फ्रॉम डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से। तो इट स्टार्ट्स व्हेन द प्रोमिसरी नोट इज एग्जीक्यूटेड। बी इज द आंसर। SC 163, a promissory note is dishonored and the holder wants to sue the drawer. When does the limitation period starts? जब वो नोटिस दे देगा, तो ये इन्होंने थोड़ा सा ना मिक्सअप करके रखे हुए हैं क्वेश्चन, NI एक्ट के घुसा दिए कहीं कहीं, कई जगह जगह भी प्रोमिसरी नोट के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़े से मैं कहूँगा कि क्वेश्चन ठीक नहीं बनाए हुए ये। अब अगर हम आर्टिकल 34 देखेंगे ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। अब देखिए ये है आर्टिकल, देखिए ये आर्टिकल 34 क्या लिखा हुआ है? बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रोमिसरी नोट पेबल एट फिक्स टाइम आफ्टर द साइट और आफ्टर डिमांड। 3 ईयर का टाइम पीरियड है व्हेन द फिक्स टाइम एक्सपायर्स, ठीक है। 35 में बताया कि ऑन डिमांड है, अगर है कंप्लीट बाय राइटिंग, स्टेनिंग पोस्टपोनिंग इशू है, पोस्टपोनिंग द राइट टू सू है अगर, तो 3 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ बिल और नोट, अगर डिमांड पे, इसलिए हमने लास्ट क्वेश्चन में 35 लगाया था। अब यहाँ पर कहीं भी डिसऑनर की बात तो करी नहीं हुई, ठीक है। डिसऑनर की बात 2 जगह पर आती है पूरे बेल एक्ट में। अभी देखिए आर्टिकल 39 है, डिसऑनर फॉरेन बिल व्हेन प्रोटेस्ट हैज बीन मेड एंड पे अगेंस्ट ड्रॉर बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अब देखिए फिर रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट से, तो यहाँ तो है ही नहीं कहीं पर भी। अगर इसके लिए हम देखते हैं फिर 138 ऑफ NI एक्ट, तो वहाँ पर पूरा टाइम पीरियड लिखा हुआ कि 30 डेज़ का टाइम देना है, 15 दिन का टाइम उसको मिलेगा, वो अप्लाई करेगा, नहीं किया फिर आप जो उसके बाद 138 में केस कर सकते हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी है। तो व्हेन द फिक्स टाइम एक्सपायर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर 34 में? व्हेन द फिक्स टाइम एक्सपायर्स, और वो ऑप्शंस में ही नहीं है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ डिसऑनर हो गया यहाँ पर, फिक्स टाइम एक्सपायर तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो मैं कहूँगी ऑप्शन तो प्रॉपर नहीं है, बट फ्रॉम डेट ऑफ डिसऑनर जो है ये हो सकता है, इशू से तो नहीं होगा। 164, the period of limitation for filing a suit by a mortgagor to redeem or recover possession of a mortgage property is 3 year, 12 year, 30 year. It is 30 years. C is the answer. कहाँ मेंशन किया हुआ है? इन आर्टिकल 61 क्लॉज A of
अगेन स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। IC 165, which section of Limitation Act governs exclusion of time obtaining consent to sue foreign ruler or ambassador? ना 9 में, ना 11 में, ना 12, ना 14, ये 15 सबसेक्शन 2 में। क्वेश्चन गलत हो गया। IC 166, an individual receives a foreign judgment and wants to execute it in India. What is the limitation period? 1 year, 3 year, 12 year? It is 3 year का मेंशन है इन आर्टिकल 101 में ऑफ स्केड्यूल ऑफ अगेन लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट इज 167, a person loses possession of the land due to adverse possession. What is the limitation to reclaim it? देखिए 12 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है पोजेशन पर या फिर टाइटल पर। पोजेशन पे है तो आर्टिकल 64 लग जाएगा, टाइटल पे है अगर एडवर्स पोजेशन तो 65 लग जाएगा। टाइम पीरियड 12 ईयर रहेगा। सी इज द आंसर। सी 168, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर सेटिंग असाइड एक्सपायर्ड डिग्री? सब जानते हैं 30 डेज हमेशा ही आता है ये तो। ए इज द आंसर। कहाँ प्रोवाइड किया हुआ पर ये? आर्टिकल 123 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 169, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट फॉर डेथ सेंटेंस इज। देखिए अब ये भी SLP के लिए लिखा हुआ, स्पेशल लीव पिटिशन के लिए 90 डेज 60 डेज का टाइम पीरियड इन आर्टिकल 133 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। 20 में आंसर है। IC 172, in computing the period of limitation for an appeal, which of the following is excluded under section 12(2)? Time spent on collecting evidence known, date on which judgment was pronounced, and time required for obtaining the copy of decree. ये ठीक है बिल्कुल। B is the answer. Entire time elapsed between hearing, no. Period taken appellant, no. IC 171, Government of India wants to file a suit for possession of land against a private entity. What is the limitation period? 3 year, 12 year, 30 years? गवर्नमेंट जो है कभी भी किसी पे केस कर सकती है 30 साल में। सी इज दी आंसर। 30 साल का लिमिटेशन पीरियड है और ये कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? इन आर्टिकल 112 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। IC 172, what is the limitation period to recover arrears of maintenance? 1 year, 3 year, 12 year? It is 3 years. B is the answer. कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? आर्टिकल 105 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। IC 173, लिमिटेशन एक्ट एक्सक्लूड्स टाइम स्पेंड इन प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट दैट लॉक्स जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शनल एरर पर कहाँ है? सेक्शन 14 है तो B इसमें आंसर हो जाएगा। IC 174, Rahul had a debt due from Ramesh, who acknowledged it in writing on January 1, 2015. The original limitation period was set to expire on March 1, 2015. By virtue of the acknowledgement, until when Rahul can file suit? From the date of acknowledgement, जब acknowledgement before expiration हो तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा अगेन फॉर 3 ईयर, या फिर जो भी टाइम पीरियड होता है उस केस में, है ना। यहाँ मनी का है तो 3 ईयर के लिए है तो फिर जनवरी 1 से जनवरी 18 हो जाएगा। बी इज़ दी आंसर। 1 जनवरी क्यों, 31 दिसंबर क्यों नहीं? क्योंकि एक दिन हम एक्सक्लूड करेंगे। द डे ऑन विच इट रिकॉर्ड विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2018 तक इनके पास टाइम है। 20 में आंसर है। Next 175, a forged will is discovered by legal heirs after 10 years. What is the limitation period to challenge it? 3 year, 1 year, 12 year, no limitation. Fraud के केस में there is no limitation. D is the answer. Section 17 of Limitation Act provides for that. IC 176, period for a limitation against pawnee to recover the things pledged is। अब देखिए pledge के बारे में कहीं लिखा ही नहीं हुआ, pawn के बारे में तो लिखा हुआ है। 1 year from the date of pawn, 3 year from the date of pawn, 12 years 6 months from the date of pawn। अब देखिए वहाँ लिखा हुआ है 3 year from the date of refusal in article 70 of
स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। कई क्वेश्चन ना घुमा फिरा के ना अपने वो तरीके से बनाने के लिए ना उन्होंने गड़बड़ कर दी है। तो बी इसमें आंसर है। 3 ईयर तो है पर डेट ऑफ पॉन ये नहीं, डेट ऑफ रिफ्यूजल है। Next 177. Arvind enters into a contract with government department. The contract is breached and Arvind wants to file a suit. However, mandatory notice under section 60 is required under special law. What happens to the limitation period? It extends by 60 days automatically. Limitation remains unaffected. Time taken for notice is excluded from computation. The limitation begins after notice period lapses. No. जो नोटिस का टाइम था, टाइम टेकन फॉर नोटिस की क्या है, ये उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। सी इज द आंसर। कहाँ मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 अगेन। 178. The limitation period for setting aside a transfer of property by guardian after the ward attains majority is 1 year, 3 years, 6 years, or 12 years? 3 years. B is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है? ये प्रोवाइड किया हुआ है इन आर्टिकल 60 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। इसी 179. A property was sold in execution of a decree and a third party wants to challenge the sale as fraudulent. What is the limitation period for filing a suit? 1 year, 3 year, 12 year. No limitation applies to challenge fraudulent sales. D is the answer. फ्रॉड के केस में नहीं है, तो अभी डिस्कस किया सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ऐसी 180. Aman is a minor with the right to sue for property recovery. His father, acting as his guardian, fails to file a suit within the limitation period. Aman attains majority and wishes to file a suit. Can he do so? हाँ ठीक है। सेक्शन 6 में गार्जियन के लिए कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि गार्जियन अगर कर सकता है तो वो उस टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, एक्सटेंड नहीं होगा। No, because the limitation period has expired. No. Yes, he gets a fresh limitation period after attaining majority. ऐसे प्रॉपर्टी के पोजेशन का है, 12 ईयर्स का टाइम है। अगर वो मान लो उस टाइम पर सिर्फ 16 ईयर्स का था, तो 2 साल वहाँ चले गए, 18 का हुआ, ठीक है ना। तो टाइम कितना मिलेगा? 10 ईयर्स का या फिर 3 ईयर्स, जो भी ज़्यादा हो। तो जो भी ज़्यादा होगा वो मिलेगा, मैक्सिमम पीरियड मिलेगा 3 ईयर और एनी अदर टाइम पीरियड मोर देन 3 ईयर इफ़ अवेलेबल, ऐसा होना चाहिए। ये फ्रेश पीरियड लिमिटेशन नहीं होता है। येस बट ओनली इफ ही प्रूव्स नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन में ही ये ऑप्शन बनता है, बट ये ऑप्शन भी ठीक नहीं बनाए हुए। बी इसमें आंसर हो सकता है। नेक्स्ट 181. हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ एयर्स आर मेंशन इन दी सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट? पहला क्या है? क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर एग्नेट, फिर कॉग्नेट। 4. सी इज द आंसर। See 182. In which of the following cases it has been laid down that the prohibition of Child Marriage Act is prevail over personal laws? लज्जा देवी वर्सेस स्टेट, विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, किस पर है ये? डिजर्शन एज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, है ना। यमुना बाई वर्सेस अनंत राव, ये किस पर है? ये सेकेंड वाइफ जो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब हो गया 144 सीआरपीसी। प्रिया बाला वर्सेस सुरेश चंद्र, ये बाइगेमी पर है, अगेन सेकंड मैरिज पर। इसमें आंसर ए रहेगा, लज्जा देवी वर्सेस स्टेट। 183. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डील्स विद द राइट ऑफ द अडॉप्टी? गुरुदास वर्सेस रासराजन या फिर बसवराजप्पा वर्सेस गुरु बसम्मा? यही आंसर है, बी इज द आंसर। गुरुदास वर्सेस रासराजन किस पर है? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अडॉप्शन एंड प्रॉपर्टी से। गौरव नागपाल वर्सेस सुमेधा नागपाल, ये है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज पैरामाउंट कंसिडरेशन एज मेंशन इन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार, ये कस्टडी ऑफ चाइल्ड पर है। 184. अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द प्रॉपर सीक्वेंस। इंडियन डाइवोर्स एक्ट कब आया था? इन 1869 में। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट
1880। कैसे बनेगा? 1243, 12 फिर 43। A is the answer. Next 185. Partition under the Mitaksha law means division of status, division of property, a trust, status and property. It is not just division of property, it is division of status. A is the answer. Next 184. The children born out of a void Hindu marriage are in the eyes of law legitimate है, illegitimate है. If illegitimate but having right of inheritance limited to their parents' property only. यही तो कहता है सेक्शन 112 of Evidence Act, है ना? और अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मांग सकते हैं, इलेजिटिमेट हैविंग नो राइट्स ऑफ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 185. द श्रुति कंसिस्ट ऑफ 4 वेदास एंड 6 वेदांगास। तो बोथ ए एंड बी, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 186. द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a Hindu is born and also can be made, has been laid down in दास्तान वर्सेस दास्तान, अब्राहम वर्सेस अब्राहम, जैन वर्सेस जैन, रसल वर्सेस रसल। दास्तान वर्सेस दास्तान किस पर है? डाइवोर्स पर, क्रूअल्टी टू हस्बैंड एंड डाइवोर्स। रसल वर्सेस रसल क्रूअल्टी की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई थी। इसमें आंसर रहेगा अब्राहम वर्सेस अब्राहम, बी इज द आंसर। इसी 187. डॉक्ट्राइन ऑफ एक्टम वॉलेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेरेमनीज ऑफ मैरिज क्योर्स non-observance of necessary ceremonies, non-observance of nuptial fire, non-observance of satpadi, non-observance of necessary ceremonies. A is the answer. Doctrine factum word का मतलब क्या होता है? What has been done is done. जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, है ना? ये क्वेश्चन हमने 2016 के पेपर में डिस्कस किया है थोड़े दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही मैंने ये पूरा बताया था इसके बारे में ना। ये ब्रिटिशर्स ने जो है चाइल्ड मैरिज के टाइम, चाइल्ड मैरिज जो थी उनको वैलिड रखने के लिए किया था कि पनिशेबल तो कर दिया बट शादी कर ली तो वो वॉइड नहीं होगी। ए इसमें आंसर है। नेक्स्ट 188. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वुड अ गिफ्ट that has been completed in the manner specified by Muslim law not to be irrevocable? irrevocable नहीं होगा, मतलब revocable होगा। where the donor and donee are husband and wife vice versa, तब तो चांस ही नहीं है भाई। where the donor and donee are within prohibited degree of relationship, तब भी वो revocable नहीं होगा, irrevocable ही रहेगा। where the gift has substantially increased in value, यहाँ कर सकते हैं revocable। C is the answer. Next 189. The doctrine of common employment at present is applicable in India only or in England या फिर both? In England only, B is the answer. Doctrine of common employment क्या कहती है? That any injury caused by a fellow employee, मतलब एक एम्प्लॉय ने किसी दूसरे को इंजरी कर दी बाय मिस्टेक या नेग्लिजेंस जो भी है, तो एम्प्लॉयर विल नॉट बी लायबल, मतलब वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर वुड नॉट बी देयर। दिस इज डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट। इंग्लैंड में चलती है ये, है ना? इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। बी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 190. द डेफिनेशन ऑफ टोर्ट इज कंटेन इन जनरल क्लॉजेज एक्ट लिमिटेशन या आईपीसी ईजमेंट। टोर्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करी गई है कहीं पर? लिमिटेशन एक्ट में है जी, सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट, टोर्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड कर रखी है। ऑलराइट। नेक्स्ट 191. द टोर्ट ऑफ डिसिट owes its origin to Passley versus Freeman, Lumley versus Guy, Allen versus Fletcher, Winmore versus Greenbank। ये है Passley versus Freeman। A is the answer। और देखिए एक होता है टोर्ट ऑफ इंटिमिडेशन। टोर्ट ऑफ इंटिमिडेशन केस कौन सा आता है उसमें? रूक्स वर्सेस बर्नार्ड। याद कर लो इसको, क्यों? नेक्स्ट पेपर आएगा ना तब समझ जाओगे क्यों बताया मैंने ये। नेक्स्ट 192. द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज हेल्ड टू बी नॉट एप्लीकेबल इन एन एक्शन फॉर टोर्ट। देखिए विंटर बॉटम वर्सेस राइट में जो है ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है टोर्ट में लिया गया था, उसको ओवररूल कर दिया किस केस में?
डोनोवी वर्सेस स्टीवनसन में, डोनोग्यू बोलते हैं, डोनोवी होता है ये। बी इसमें आंसर है। किस पर है आया? नेग्लिजेंस पर। जिंजर बियर में जो स्नेल निकला था वो वाला केस है ये, है ना। ग्रांड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स लिमिटेड, ये बनाते थे अंडरवेयर, और किसी के जो है वो रैशेज आ गए ग्रांट के, तो ग्रांट ने जो है केस कर दिया वही। एशवी वर्सेस वाइट, किस पर केस है ये? इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेजेस। एक होता है ना डैमेजेस विदाउट इंजरी, कौन सा केस आता है उसमें? ग्रोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। नेक्स्ट 193, डैमेज इज द मेन रेमेडी इन एक्शन फॉर टोर्ट, या फिर मेन रेमेडी बोथ इन एक्शन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज एक्शन इन टोर्ट। बी इज द आंसर, डिसाइडेड बाय द कोर्ट, रेमेडी एक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो। डैमेजेस तो मिलते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में भी, सेक्शन 74 प्रोवाइड करता है ना डैमेजेस के लिए। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 194, मलीस इन लॉ क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट डन इंटेंशनली बट विदाउट जस्ट कोज और एक्सक्यूज। विद जस्ट कोज क्यों होगा? गुड मोटिव होगा तो नहीं होगा, इविल मोटिव ना। विदाउट जस्ट कोज एंड एक्सक्यूज है तो मलीस इन लॉ है। ए इज द आंसर। Next 195, doctrine of res ipsa loquitur was applied by Supreme Court in Alka versus Union of India, Asaram versus MCD, या फिर MCD versus सुभागवंती, या फिर जसवीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था ये MCD वर्सेस सुभागवंती में। सी इज द आंसर। क्या हुआ था इस केस में? देखिए पहले चांदनी चौक में ना क्लॉक टावर थी ऊपर, जैसे लंदन में बनी हुई है ना बिग बैन जिसको बोलते हैं, ऐसी बहुत बड़ी थी वो। पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, गिर गई, कई लोग मर गए थे उसमें, तो ये वो केस आया था। फिर नेग्लिजेंस थी MCD वर्कर्स की। सी इसमें आंसर है। नेक्स्ट 196, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट वाज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। सरला मुद्गल केस किस पर है? मेंटेनेंस पर 125 CRPC, मेंटेनेंस टू मुस्लिम वाइफ पर। मफतलाल इंडस्ट्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही आंसर है। SRO मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये उन्नी कृष्णन, ये किस पे है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस हैं। 20 में आंसर रहेगा। 1997 की जजमेंट है ये। ऐसी 197, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी एक्सक्लूड्स री एंट्री ऑन लैंड, ये भी है। रिकैप्चर ऑफ गुड्स, यस। डैमेजेस, ये क्या है? जुडिशियस रेमेडी है। अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल। सी इसमें आंसर है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जो जुडिशियल नहीं हो, मतलब उसके अलावा भी आप जो है कर सकते हैं कुछ अपने आप से भी। कोर्ट के बाहर जो भी रेमेडी है दैट इज एक्स्ट्रा जुडिशियल। कोर्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा? डैमेजेस ओनली। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 198, when the plaintiff himself is a wrongdoer, he is not disentitled from recovering in tort unless some unlawful act or conduct on his own part is connected with the harm suffered by him as a part of same transaction. Stated by सर गारफील्ड पोलक या फ्रेडरिक पोलक या सॉलमन विनपे। ये कहा था सर फ्रेडरिक पोलक ने इन हिज बुक ऑन टोर्ट में। बी इज द आंसर। Next 199, a patient sues a doctor for medical negligence after 7 years. The hospital argues limitation has expired. What exception might apply? अब exception क्या होगी? If the injury was discovered later, या फिर doctor left the company, या फिर the patient was advised wrongly, the patient did not consult a lawyer earlier. इंजरी कब पता लगी? लेटर ऑन। यही तो करेंगे हम। ए इज दी आंसर। पता लगा तभी तो केस करेंगे भाई। ए इसमें आंसर रहेगा। ऐसे 200, कैटल फॉर द पर्पस ऑफ कैटल ट्रेसपास इंक्लूड्स बुल्स एंड काउज बट नॉट डॉग्स एंड कैट्स। बिल्कुल ठीक है। इंक्लूड्स बुल्स एंड डॉग्स एंड कैट्स, नो। इंक्लूड्स डॉग्स बट नॉट कैट्स, कैट्स बट नॉट डॉग्स, नो। ए इसमें आंसर रहेगा। कैसे पता? देखिए जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है अंग्रेजों के टाइम का, उसमें सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशंस लिखी हुई हैं और वहाँ पर कैटल की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो उसमें लिखा हुआ है काउ, बुल, मेयर, गोट, शीप, सब कैटल्स हैं, एक्सेप्ट डॉग्स, कैट्स ये नहीं है। तो ए इसमें आंसर है।
So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of West Bengal Judicial Services 2025. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए। जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको वीडियो और भी अच्छी लगी हो, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज जस्ट अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए हमारी वीडियोस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।